content is king, distribution is God. Good founder trait that we have seen, that constantly listen, because वहीं से आपको ज़्यादातर सारे ideas, सारे insight वहीं से आ जाएंगे. Especially हम जितने भी category creator company builders हैं ना, हम सबके लाइफ में तो perseverance के सिवाय कुछ और है ही नहीं. आप खड़े रहोगे जीत जाओगे. जब आप कंटेंट सेंट्रिक कुछ अगर बनाते हो और इंफॉर्मेशन सेंट्रिक का बनाते हो तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आर अनलिमिटेड. Never in my wildest of the dreams I would have thought that I'll become a film producer someday. If you could go back to the Vinay in 2019, what would be that one thing you would tell him? What would be one thing I would tell him? I think he was doing all right. एक कॉमन टर्म बीघा जो सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं, उसका साइज हर जगह अलग है. तो बारिश होती है उस दिन ऐप का यूज बढ़ जाता है. हाँ, अब किसी से भी ऐसे पूछ लोगे ना कि कल डीएयू कितना था, तो डीएयू सुन के लोग बोल देंगे अच्छा बारिश हुई है, कहाँ हुई है. I have Vinay and Rajesh with me today. Vinay, you're with Stage OTT, India का I think largest vernacular platform है. I would love अगर आप हमसे उसके बारे में कुछ बात करें. तो Vinay, please do start. बिल्कुल. Before we do, I'll say something. Vernacular as a term was used by Britishers to define languages which were non-English languages. So, a more correct term, and maybe you want to reshoot this, is Indic languages. Indic languages, very interesting. अच्छा. Vernacular वैसे, मतलब all of us end up using it. I end up using it sometimes, and because it's more acceptable and like, if you go to the history of the word, it's a very derogatory word that way. Yeah, because they said everything outside English is vernacular essentially. They used it like that. Oh, you're either with me or against me. Okay. Yeah, something like that. But anyways, so thank you for having me, Niharika. And we're building Stage. Stage is basically entertainment platform for India's regional cultures. What do we mean by that? Is that our country, which is a very edge case country, by the way, because the idea of a country across the world is primarily centered around a language, right? You see the entire of Europe, everybody who spoke French became France, everybody who spoke German became Germany, and Italian, and all so on and so forth, right? We as a country have 22 official languages and 19,000 dialects, right. More than 19,000 of them, right? And we're still one country. It's a miracle. It is a miracle that we exist as a country together, right? But what happened in the process of coming together as a country, especially after independence, was that we became part of this entire political agenda where one nation, one language, and we kind of tried to be homogeneous somehow, right? And in the process, we ended up kind of suppressing a lot of our own cultures, right? Which led to entire generations feeling inferior for who they are, essentially, right? And we identified that as a thing, that as a pain we point. have so many of these regional cultures in India, and they don't have a representation, on the national stage or anywhere, right? People drive their identities out of these cultures, right? I am from Haryana. I'm a Haryanvi speaker, and I'm a Haryanvi culture person, essentially, right? And Haryanvi language or dialect and Haryanvi culture are two different things, by the way. They can be very different. So I'm a Haryanvi, essentially, right? And जैसे मैं Indian हूँ, जैसे मैं Hindu हूँ, वैसे ही मैं हरियाणवी भी हूँ. I'm born with it, right? It's part of my identification system. But unfortunately, this is one identity जिसके बेसिस पे मेरे को हमेशा नीचा दिखाया जाता है, inferior feel कराया जाता है कि अरे आप हरियाणवी में बात कर रहे हो तो गांव के हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, कोई अक्खड़ होगा. आप कोई भी फिल्म देखो, हरियाणवी कैरेक्टर या तो ऐसे कोई पहलवान टाइप का आदमी होगा, या कोई दिल्ली पुलिस का पर्सनल who will speak very rudely to someone or something like that, या कोई गुंडा टाइप का आदमी होगा. That's about it, right? Yeah, the stereotypes. But that's not Haryanvis are, right? And so what has happened is in the process हमने बहुत ही ऐसे stereotype करके and otherwise बहुत ही inferior बना दिया है, मतलब उनको कि अगर आप पढ़े लिखे लोग हो, समझदार लोग हो, तो आप हिंदी में बात करोगे, अंग्रेजी में बात करोगे, बेसिकली.
And so that's the problem statement. That's the point that we kind of identified and said that if we are able to give a way for these people to validate, to reinforce, and to celebrate their identities based on their regional cultures, we could build something really, really impactful here, right? So that's what stage does. Stage is basically, stage is a movement, which is why we say we have a Kranti, you know? I'm wearing it, make sure the viewers don't miss it, right? Right. So stage is a movement for validating, reinforcing, and celebrating the socio-cultural identities of people based on their regional cultures, essentially. So that's what we are trying to build. बढ़िया. और ये आई थिंक बहुत ही बढ़िया है जो आप बना रहे हैं. इनफैक्ट मुझे याद है जब मैं और आप मिले थे, हमारा कनेक्ट हुआ था कि अपनी भाषा में बात करके दिल को कितना शांति मिलती है और शांति मिलती है. टू मी इट्स लाइक हैविंग दाल चावल. जैसे दाल चावल आप रोज खा सकते हैं, वैसे जब अपनी जैसी भी मेरी टूटी फूटी हिंदी है जिसमें जब मैं बात करती हूँ मुझे वैसा ही चैन और सुकून मिलता है. लाइक यू सेड, कंजम्पशन इज द वे पीपल आइडेंटिफाई. सिमिलरली आई थिंक कंटेंट इज किंग, राइट? एक पहले बोलते थे कस्टमर इज किंग. मुझे लगता है टुडे कंटेंट इज किंग. एंड नाउ राजेश विद कृषिफाई यू आल्सो बिल्ड दैट, राइट? टेकिंग इट टू द फार्मर्स. तो आप जरा उसके बारे में बताइएगा. Yeah, so building Krishify since last 5 years now. और जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने पिक किया था कि मतलब इंडिया में फार्मर्स का पॉपुलेशन काफी बड़ा है. आई थिंक अराउंड एज पर द रिपोर्ट्स 13-14 करोड़. वो भी एक मतलब इट्स एन आयरनी कि फार्मर का डेफिनेशन अभी तक क्लियर नहीं है, बाय द वे. सो बट कुछ 13 करोड़ फार्मर्स हैं, कल्टीवेटर्स हैं. उसके अलावा देयर आर सम 13 to 15 crores फार्म लेबरर्स, राइट? और उसके बाद आप बाकी ले लीजिए काम करने वाले लोग जो ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं या डीलर्स हैं, राइट? या एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड हैं. सो ये सब मिला के बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, राइट? सो एज यू सेड कि कंटेंट इज किंग एंड कंटेंट वाज डूइंग वंडर्स इन ऑलमोस्ट ऑल द इंडस्ट्रीज. इवन इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, मतलब हम एजुकेशन की बात करते हैं, हम हेल्थ केयर की बात करते हैं, हम बाकी सेक्टर्स की बात करते हैं, अवेयरनेस की बात करते हैं. सो टू थिंग्स, कंटेंट एंड दिस रेवोल्यूशन ऑफ स्मार्टफोन व्हिच हैज रीच्ड एवरीवेयर, टेकिंग फ्रॉम this person Ashish Chopra, his begin content, making viral content. So we used to work together at Ixigo at one point of time, right? So वो उनका ये कहना था कि यार ये स्मार्टफोन है ना, मतलब ये सारी दुनिया को, या एटलीस्ट अगर हम इंडिया लेवल में बात करें, सबको एक पार पे लेके आता है, राइट? इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ सोशल इकोनॉमिकल डिवाइडर्स, राइट? इंफॉर्मेशन एक्सेस सबके पास सिमिलर है, राइट? टू अ सर्टेन लेवल. बट वो फार्मर्स के लिए कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए क्या इंफॉर्मेशन एक इतना बड़ा गैप है जिसके कारण हम जो भी प्रॉब्लम्स, आई नीड नॉट रिपीट इट अगेन, वी ऑल नो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर, कितना अंडरसर्व्ड कम्युनिटी है या इंडस्ट्री है. सो वी थॉट कि यहाँ पे कुछ किया जा सकता है, कुछ करना चाहिए. एंड वेयर द स्ट्रेंथ लाइड कि बिल्डिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स, राइट? सो उसको यूज करके सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ इंफॉर्मेशन एसिमेट्री वाज द ओनली आइडिया व्हेन वी स्टार्टेड. सो मतलब देयर वाज नो प्लेबुक टू लर्न फ्रॉम कि आप एक फार्मर्स के लिए डिजिटली आप क्या बनाओगे, कंटेंट प्लेटफॉर्म कैसा बनेगा, फार्मर्स कंज्यूम करेंगे कि नहीं करेंगे, right? Some cues we were able to take from some Facebook groups, right? Some WhatsApp groups that some of them we had created, some existed and we just somehow managed to join them. So वहाँ से काफी cues मिला कि कितना content consumption होता है, किस टाइप का content consumption होता है, and actually people engage, right? So that was one sign कि content की need तो है, right? There is hunger for information, उतना information शायद available नहीं है. So even at that time, YouTube पे I was talking about apps, right? कि 2019 when we started, India से एक single agricultural app नहीं था जिसके 1 million downloads थे. When we were talking about 100 millions, right? Everywhere. Even on YouTube, मतलब हिंदी में आपको को अगर एक्चुअली एग्रीकल्चर सीखनी है, तो ढंग का कंटेंट एंड इट्स मतलब देयर इज स्कैर्सिटी अभी तक, अच्छा, राइट? आपको मतलब इस टाइप का क्लिक बेट कंटेंट काफी मिलेगा, बट एक्चुअल रियल कंटेंट टू लर्न समथिंग, टू सॉल्व सम प्रॉब्लम, गेट सम एक्शनेबल्स, राइट, उसकी स्कैर्सिटी थी, अच्छा, राइट? सो वी थॉट कि कहीं से स्टार्ट करते हैं. सो वी स्टार्टेड एज अ कंटेंट प्लेटफॉर्म, started adding a lot of features onto it,
अर्ली ट्रैक्शन बढ़िया मिला, उसमें काफी हमने कंटेंट रिसर्च किया, अलग अलग टाइप से यूजर रिसर्च किया, and then you know somebody from our users only coined a term कि ये किसानों का Facebook है, right? अच्छा, very nice. And we started you know just following that term कि what we are building, I mean the simplest way when we started after some time, simplest way for us to explain कि what Krishify does, तो किसानों का Facebook है, अच्छा, right? Because at that time it had everything that a farmer would do in their daily lives related to agriculture lifestyle, right? कि उसको खेती में कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम डिस्कस कर सकता है, इवन उसको कोई लाइफ स्टॉक बेचनी है, गाय भैंस बेचना खरीदना, उसमें आके लोग डिस्कस कर रहे हैं, पुराने ट्रैक्टर्स बेचने खरीदने का यूज केस डिस्कशन चल रहा है। जब आप कंटेंट सेंट्रिक कुछ अगर बनाते हो और इंफॉर्मेशन सेंट्रिक का बनाते हो तो सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आर अनलिमिटेड, राइट? कि फिर देन यू स्टार्ट डिस्कवरिंग यूज केसेस कि एक प्रॉब्लम है कि जैसे व्हेन वी बाय एनीथिंग एनी प्रोडक्ट, राइट? सो जनरली वी डू सम रिसर्च, राइट? कि ऑनलाइन जाके पहले रिव्यूज पढ़ लेंगे, उसके बाद वी विल डिसाइड व्हिच वन टू बाय। बट एक फार्मर का आप इमेजिन करो कि उसको एग्रोकेमिकल डालना है या कोई नया सीड पे एक्सपेरिमेंट करना है, बट रिव्यूज नहीं है, राइट? सो वो एक यूज केस आया कि लोग कुछ भी खरीद के लाते हैं और यहाँ पे दे जस्ट वांट सेकंड ओपिनियन। सो नॉट सेइंग कि मतलब वो ऐप से पूछ के ही खेती करते हैं, नहीं, अभी वो थोड़ा सा मतलब डिस्टेंट है, राइट? बट एटलीस्ट देयर इज एन अल्टरनेट इंडिपेंडेंट अनबायस्ड ओपिनियन दैट दे गेट। एंड सो दैट्स सो इंटरेस्टिंग कि आप, आई थिंक एंड यू नो आपसे भी हम यही बात कर रहे थे पहले विनय कि अपने कंज्यूमर्स को सुनना कितना जरूरी है। जैसे आपने उनसे सुना है फेसबुक फॉर फार्मर्स, दिस इज ग्रेट, राइट? लाइक दैट काइंड ऑफ प्रीटी मच कॉइंड itself for you, and आप भी बता रहे थे कि आपकी जैसे आई थिंक सबसे जो पॉपुलर कंटेंट थी दैट वाज आल्सो टेस्टेड आउट, राइट? एंड ऑलमोस्ट केम फ्रॉम द कंज्यूमर। सो ये एक चीज आई थिंक इररिस्पेक्टिव ऑफ हम किस भी कैटेगरी के लिए बना रहे हैं, दिस इज अ वेरी बेसिक गुड फाउंडर ट्रेट दैट वी हैव सीन, दैट कॉन्स्टेंटली लिसन, बिकॉज वहीं से आपको ज्यादातर सारे आइडियाज, सारे इंसाइट वहीं से आ जाएंगे अगर आपके लिसनिंग पोस्ट ओपन है तो। क्योंकि कई बार मैंने ये देखा है थोड़ा सा कि फाउंडर्स को हो जाता है अब मुझे पता है कि क्या है, सो समटाइम्स यू नो इफ आई कैन कोट स्टीव जॉब्स दैट द कस्टमर डजंट वांट व्हाट ही नीड्स, और यू नो वो वन ऑफ केसेस है मुझे लगता है। बट टिपिकली अगर आप लार्जर कम्युनिटी को सर्व कर रहे हो, सो योर कंज्यूमर्स आर वेरी गुड विद शेयरिंग व्हाट दे वांट टू सी, व्हाट दे वांट टू हियर, हाउ दे वांट टू कंज्यूम व्हाटएवर इट इज। तो एक चीज बताइएगा विनय, जब आपने स्टार्ट किया, आई नो आपने एक बार पहले भी शेयर किया था कि ये कैटेगरी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, राइट? उसका एक अपना अलग चैलेंज होता है जब आपने कुछ बना रखा है जिसमें आप यू कैन ऑल्सो से कि यू नो देयर इज समबडी एल्स हु हैज डन इट समथिंग सिमिलर, तो आई थिंक थोड़ा सा रिस्क मिटिगेट हो जाता है जो इन्वेस्टर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि ठीक है मुझे पता है आप ऐसा ऐसा कुछ तो बना देंगे। आपने आके कहा मुझे बनाना एक प्रोडक्शन हाउस, मीडिया हाउस, वो नॉट अ स्टैंडर्ड वीसी फंडेबल बिजनेस है। ऐसे ऐसे उस टाइम था, आई थिंक जब तक आपने शुरू नहीं किया था। Thanks for validating so many of them are watching. नहीं, but I think उस टाइम ये नहीं था, right? It is not one of those obvious things that you would think. How did you kind of work through that? जब आप एक नई कैटेगरी लेके आना चाहते हैं as a founder, what were the sort of challenges you faced, and how was it that you were able to navigate them? We were building Witty Feed before this, right? That company died, and we were thinking on what to do next. Content was probably the only thing that we understood really well, right? दो बहुत ही core beliefs पे हमने Witty Feed बनाया था earlier, which was number one, there is nothing more powerful than content as a medium of mass influence. Like one story can literally reach out to 8 billion people and you know impact their lives in some ways. There can't be nothing more powerful, right? And second one was that if content is king, distribution is God. The real game in content is not just about creating great content, right? Because that anybody can do. उसका कोई ब्लॉकर नहीं है। अगर आप genuinely देखें, चाहे स्टेज हो चाहे क्रिसिफाई हो, हम एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व कर रहे हैं, है ना? वो किसान और उन किसानों के पास वो ज्ञान क्रिसिफाई के पहले भी एग्जिस्ट करता था। क्रिसिफाई उस ज्ञान को उठा के एक प्लेटफॉर्म पे रख रहा है जहाँ से वो ज्ञान बहुत सारे डेमोक्रेटाइज हो रहा है, वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच जा रहा है, हजारों लाखों किसानों तक वो पहुंच जा रहा है बेसिकली, राइट? हरियाणवी कंटेंट इन सम और अदर फॉर्म, वो आर्टिस्ट, हमसे पहले ऐसा नहीं है कि हरियाणवी आर्टिस्ट एग्जिस्ट नहीं करते थे या लोगों को हरियाणवी कंटेंट बनाना नहीं था। प्रॉब्लम थी कि हरियाणवी पिक्चर कोई बना ले तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करे? थिएटर रिलीज नहीं करता था,
राइट थिएटर रिलीज नहीं करेगा तो आपका पैसा नहीं रिकवर होगा, बिल्कुल। रिकवर नहीं होगा तो आप पिक्चर बनाओगे क्यों बेसिकली। तो इट वाज अ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम दैट वी आल्सो सॉल्व, राइट। तो एनीवेज ये दो बिलीव्स थे कि कंटेंट एज अ मीडियम ऑफ मास इन्फ्लुएंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज अ रियल प्रॉब्लम टू सॉल्व फॉर। तो when we were thinking on what to do next, we realized that content ही करते हैं। तो we are 4 founders, like we are very B2C founders. I don't think I'll ever build a SaaS company or a Right. B2B company. And then we started to look at all the content problems that existed in the market. Back in 2019, all top 5 content companies were Chinese, UGC, and in the name of UGC, all of them were doing basically very sleazy content. या Right. And so we asked ourselves कि यार क्या भारत को यही सब देखना है? क्या अगर मुझे लगता है मेरी फैमिली भारत है, हम भारत हैं, तो क्या हमें ये सब कंटेंट देखना है? एंड द आंसर वाज ऑब्वियसली नो। वी वांट टू कंज्यूम क्वालिटी कंटेंट, सेंसिबल कंटेंट, बट कोई बनाता ही नहीं है, देखें कहाँ से? एंड दैट इज हाउ द आइडिया ऑफ स्टेज वाज बोर्न कि लेट्स डू प्रीमियम एंड सेंसिबल कंटेंट फॉर भारत। Never in my wildest of the dreams I would have thought that I'll become a film producer someday. कॉलेज में जब इंजीनियरिंग करने घुसे थे, कभी सोचा नहीं कभी ऐसे मतलब दूर दूर तक ऐसे करियर ऑप्शन नहीं सोचा होगा कि किसी दिन फिल्में प्रोड्यूस कर रहे होंगे हम बैठ के, राइट। राइट और फिर वो भी कहाँ, हरियाणवी में और राजस्थानी में। इट्स वेरी वेरी फार ऑफ फ्रॉम इमेजिनेशन दैट वे, राइट। हमने देखा कि अच्छा प्रीमियम बनाना है तो पीजीसी बनाना पड़ेगा, यूजीसी नहीं बना सकते। राइट अच्छा अब इसमें पीजीसी में क्या ऑप्शन है? पीजीसी में न्यूज कंपनी बना सकते हो, हमारा डीएनए नहीं है। एक बार आप यूजीसी पीजीसी यूजीसी मतलब यूजर जनरेटेड कंटेंट एंड पीजीसी मतलब प्रोफेशनली जनरेटेड कंटेंट, राइट। तो न्यूज बना सकते हो, न्यूज हमारा डीएनए नहीं था, प्लस न्यूज कंपनी होने का इस देश में अपनी समस्याएं हैं, तो लाइक न्यूज नहीं करते हैं, जी ठीक है। तो पीजीसी में फिर ऑप्शन ही बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। देन ओटीटी वाज द अदर ऑप्शन। तो समझ में आएगा अच्छा चलो ओटीटी फॉर भारत बनाते हैं। बट देन द मोमेंट यू से दैट यू आर लाइक कम से कम भी 45-50 एप्स हैं जो सब यही क्लेम करते हैं कि हम इंडिया का नेटफ्लिक्स बना रहे हैं, तो फिर आप क्या अलग कर रहे हो? वेरी कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन कि फिर अब इतने लोग कर ही रहे हैं तो फिर आप क्या अलग कर रहे हो? क्या फिर क्यों ही करना है आपको, राइट। फिर तो आप शायद कहीं गलत सोल्यूशन पे पहुंच गए, जो प्रॉब्लम थी उस पर थोड़ा और डीपर गए कि यार अगर ये 45-50 एप्स हैं तो फिर मुझे क्यों लग रहा था कि हमारे लिए कंटेंट नहीं है या मेरी फैमिली के लिए कंटेंट नहीं है। आंसर टू दैट बेसिकली लेड अस टू द सिंपल फैक्ट दैट कि जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं इंडिया में, ऑल ऑफ देम डू हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, पंजाबी, बांग्ला, गुजराती, ये 7 लैंग्वेजेस के बाहर कोई कंटेंट नहीं करता है। नेशनल, रीजनल, सारे प्लेयर मिला के। आई ग्रू अप इन हरियाणा एंड देयर वाज नोबडी डूइंग हरियाणवी कंटेंट, राइट। एंड सो वही वन थिंग लेट टू कि हरियाणवी में क्यों नहीं है, बिकॉज हरियाणवी एक डायलेक्ट है, लैंग्वेज नहीं है। एंड सो वी एंडेड अप बेसिकली अच्छा हरियाणवी का नेटफ्लिक्स नहीं एग्जिस्ट करता है, हरियाणवी का नेटफ्लिक्स बनाते हैं बेसिकली, राइट। Started with that and the initial idea was that dialect based OTT and Netflix for Bharat, all those things that we used to say. Very recently, after listening to a lot of our consumers, we realized that we're doing none of that. Achha. So we are actually not Netflix for Bharat, and we're not a dialect based OTT only. The problem statement has evolved quite a lot. We are that also, but not just that. Which is why when you asked me to like describe Stage and who we are, I didn't use Netflix for Bharat. I didn't use डायलेक्ट बेस्ड ओटीटी। तो अब हम क्या विजन देख रहे हैं? राजेश मस्ट बी फेसिंग दिस एवरी डे हिमसेल्फ। जैसे ही बोलते हैं कि हम भारत के लिए कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, तो स्पेशली आप लोग इन्वेस्टर लोग के दिमाग में बहुत एक प्री फिक्सेटेड इमेज है। आप लोगों को लगता है कि भारत मतलब गरीब आदमी, कोई टैक्सी ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड एंड फार्मर, इसके आगे कोई नहीं सोचता है कुछ और। व्हेन वी लुक्ड एट आवर डेटा वी रियलाइज कि बॉस हमारा यूजर तो यहाँ से बहुत, वो सारे यूजर है हमारे जो आप सोच रहे हो, बट एक्चुअल में जो पेइंग कस्टमर है हमारा वो तो बिल्कुल उसका उल्टा है। द पॉइंट दैट आई वाज एंड व्हिच इज वेयर वी रियलाइज दिस एंटायर थीसिस अराउंड आइडेंटिटी एंड कल्चर कि हम रीजनल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वैलिडेशन दे रहे हैं और सेलिब्रेशन दे रहे हैं और रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं। देन जस्ट बेसिकली जैसे आप स्टेज के किसी भी कस्टमर से बात करोगे ना निहारिका, तो वो आपको बहुत क्लियरली बताएगा कि वो इसलिए नहीं डाउनलोड करता है इस ऐप को क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी फिल्में मिलती हैं, वो इसलिए डाउनलोड करता है कि यहाँ हरियाणवी में मिलती है, कि ये हमारी हरियाणवी की ऐप है, ये हमारी राजस्थानी की ऐप है। एंड सो दैट आइडेंटिटी, दैट कल्चर इज सो मच मोर इम्पोर्टेंट टू देम देन द क्वालिटी ऑफ द फिल्म इटसेल्फ। नॉट सेइंग दैट यू कैन गेट अवे विद पुअर क्वालिटी, but the fact that it is in Haryanvi and Rajasthani is so much more important to that customer than being a film itself. Basically. I will definitely concur. मैं 2 चीजें जरूर बोलूंगी। एक, ये चीज जब आप अपनी कंट्री से बाहर भी होते हो ना, तब भी आप रियलाइज करते हो। तो जैसे
जब मैं I was for a few years in the US, तो जो समोसा मैं यहाँ कभी ना खाऊं कि मुझे इसके स्वाद में मैं इतनी मीन में एक निकाल लूंगी कि ये ऐसे ठीक नहीं बना और मुझे वहीं का खाना है, वहां पे जाके बाहर अगर इट्स स्नोइंग एंड एक गरम समोसा और चाय मिल जाए, वो ऐसे, वही मैं बात बता रही हूँ, it didn't matter because like you said, what it did was validation for my need at that so point the in taste time. of the food was secondary. Exactly. The fact that you could get the food of your choice Exactly. and like food that represented you Yeah. was so much more important to you, right? So important. And the second part I will say is though I completely concur, तभी हमने अपनी podcast का नाम द भारत कॉन्वर्सेशन रखा है, क्योंकि मुझे लगता है भारत is way beyond certain particular pedigree tier 1 personas and there is nothing wrong for it. वो persona काफी uniting है over in the entire country, right? जब आप एक urban company बनाते हैं, I keep coming back to that company because I absolutely love them. मेरे को लगता है उन्होंने बहुत ही बढ़िया धाकर काम कर रखा है. Of course. Shout out, I hope I get them on TVC someday soon. But that aside, वो आप चाहे एक बैंगलोर में हो, आप दिल्ली में हो, वो commonality है एक persona की, but बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी commonality नहीं है और like you said वो identify करते हैं, तो Yes. and there shouldn't be anything wrong, like there is nothing wrong in saying I'm Indian when I'm outside. Being comfortable with who you are also takes time. I also think ये समय लगता है थोड़ा सा, कई बार life experiences होते हैं when you get comfortable to the idea of I am this person but I'm also this, one is not. ये हमारी कंपनी का क्रक्स है भाई, तब हम ये बनाते हैं. अब we signed Neeraj Chopra as a brand ambassador. Oh, lovely. And we did a entire campaign with him. The campaign is titled जो हम हैं सो हम हैं. वाह. The entire, ये नहीं कहा बाकी सब पानी कम है. No, नहीं है, कोई कम नहीं है. मैं वही तो, that's the entire purpose. Right. कि आप जैसे हो ना वैसे अच्छे हो. The whole campaign was about telling people कि आप जैसे हो उसमें आप comfortable feel करो, उसमें आपको, and exactly what we heard from our users. तो जब हमने ऐप लॉन्च करी तो the reviews on Play Store came कि sir thank you, आपने हमारी बोली को बचा लिया, आपने हमारी कल्चर को बचा लिया. We didn't set out to do that. Right. We started to build an entertainment company only. That's the honest reality of it. कि content बनाएंगे, फिल्में बनाएंगे, हरियाणवी फिल्में exist नहीं करती हैं, चलो बनाते हैं. It's not like ये सारी जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ ये पहले दिन पता थी मुझे, बिल्कुल नहीं पता थी. It all evolved with time, right? तो हमें लगा यार ये क्या हो रहा है, हम तो फिल्में बनाने चले थे, entertainment company, ये कल्चर बचाने की बात कर रहा है भाई, हम नहीं बचा रहे. तो बात करी उनसे तो समझ में आया कि all this inferiority complex, especially last 75 years of independence, we have done so much bad to our own country people. We have told them कि भाई अगर तुम अंग्रेजी में बात नहीं करते हो, हिंदी में बात नहीं करते हो, तो तुम गंवार हो, तुम अनपढ़ हो, तुम गाँव के हो, तुम किसी लायक नहीं हो सकता उसके पास कैंसर का इलाज हो. They didn't never felt comfortable and all of a sudden now they had an app which was in Haryanvi. Film is like the highest form of influence in this country. मतलब अमिताभ बच्चन एक बार बेल बटन पहन के निकलता है तो पूरा देश बेल बटन को. And this guy downloads an app which is primarily for Haryanvi. उसमें जज, मास्टर, टीचर, डॉक्टर, जो देखो पुलिस वाला, हर कोई हरियाणवी में बात कर रहा है. He and she starts to feel कि अरे हरियाणवी बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब. And they start to feel comfortable with themselves, and that is when they come and say कि सर thank you, आपने हमें मतलब हमारी कल्चर बचा ली, आपने हमारी बोली बचा ली, and I can pass it to my next generation. Let's take Sridhar Vembu's example, right? Sitting at the top of the pyramid, literally at the peak of it, is a Tamil guy, watches Tamil content, obviously, right? And on the other hand, an auto driver in Chennai again watches Tamil content, and everybody in between, right? Yeah. The point I'm trying to make is that all of them drive validation, reinforcement, and celebration of their Tamil identities by watching that Tamil content, right? So why would, the moment I say Haryanvi content, why would you imagine some garib guy watching it or only gaon wala watching it? हम क्यों नहीं imagine करते कि नीरज चोपड़ा, would also watch it on the other side, right? And so on and so forth. That's the entire identity piece that we're trying to, tell everybody that regional cultural identities have nothing to do with your socio-economic class, right? If you are a Tamilian, you're a Tamilian, doesn't matter. And if you're a Haryanvi, you're a Haryanvi, doesn't matter how rich or poor or wherever you are. Right. And given, provided that you have content available and accessible in your culture, you would watch it. चाहे आप बहुत बिलियनर हो या आप बिल्कुल गरीब हो, अपनी आइडेंटिटी का वैलिडेशन हम सबको चाहिए होता है essentially, right? And that's where we kind of brought this new understanding of stage, that we are a platform for regional cultural identities and not just entertainment. That's great. And actually, जो Anil Agarwal from Vedanta, right? He on LinkedIn talks very
passionately always about his identity as from Yes. being from Bihar, how he enjoys the culture, वहाँ का खाना, वहाँ का Right, रहन food, सहन, festival, yeah. Yes, बिल्कुल, yes. Everything. बिल्कुल. And Rajesh, He represents Bihari, Marwadi, both. Right. Yeah. He is a Marwadi from Bihar. right, Yeah, right. true. And so, but no, but right, like वो aspect उनका, he's very proud about it that he lived in London or wherever else, where it Yes, doesn't change the fact yes. that who he is and it feels like home. So Rajesh, आप भी अभी बता रहे थे that you're also from Bihar, as well. But I would love to hear, जैसे I think विनय ने एक बहुत interesting बात बोली थी कि just even on your app, right, there are farmers do talk about कि जो content consumption होता है वो कितना उसमें वेरिएशन है इन टर्म्स ऑफ द साइज ऑफ द फार्मर्स एंड रियली किस टाइप का हम जो कंजम्पशन देख रहे हैं कृषिफाई में, उससे आपने जैसे कहा था एक ट्रेडिंग एस्पेक्ट भी, सो कंटेंट इज ओनली द बेस ऑफ इट, Right, only the base of it. बियॉन्ड दैट यू बिल्ड मोर ऑफ अ क्रॉस स्टेक होल्डर Yes, exactly. win-win for everyone, right, by True. bringing together 1 crore. Yeah, 1 Plus. crore farmers, yeah. That's great. So थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, and then I would love to also hear कि जब आपने रेस किया था, आपने दोनों ने I think 2019 में आपने भी शुरू किया था और आपकी भी शुरुआत 2019 की ही है, तो आपने जो मेंशन किया था कि that time there was no one there with this size. So how did you even go about sort of again speaking to, you know, from an investor angle, Right. to them, कि how did you convince them when something like this was not done? So answering your second question Yeah. first, so you know एग्रीकल्चर मतलब ऐसा नया तो है नहीं, हाँ. तो बहुत पुराना है, मतलब पुराना देन मतलब पुराने पुराना से older पुराना है. than older, yeah, yeah. फर्स्ट रिवोल्यूशन ऑफ द प्लेनेट, Exactly. एग्री Yeah. रिवोल्यूशन. बट खेती होती है, मतलब उसका प्रोसेस है, आपको सीड डालना है, आपको Hmm. खाद पानी डालना है, एंड इट ग्रोज, राइट. एंड ट्रेडिंग अगेन, लाइक हाउ फार्मर्स अर्न मनी बाय सेलिंग देयर क्रॉप्स, सो वो भी होता है. सो ऑल बिजनेसेस, मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस विल रन अराउंड दीज टू एक्टिविटीज. Right. सो एग्रीटेक का पहले भी मतलब एक साइकिल आया है, और फिर यू नो इट गॉट स्टार्टेड, लॉट ऑफ कंपनीज गॉट फंडेड. वन ऑफ द मोस्ट लव्ड इंडस्ट्रीज बाय द इन्वेस्टर्स, Hmm. राइट, इन रियल सेंस शायद नहीं है, Hmm. right? Because we talk about challenges of scalability. When we are building products, right? Hmm. तो हम बहुत fast experiments कर सकते हैं. हाँ. जैसे आप content की बात कर रहे थे कि आप Yeah. एक साथ मतलब 200 ads निकाल सकते हो और देख सकते हो कैसा reaction आ रहा है. Anything you do with agriculture, right? And even if you have to experiment, आपको पूरा season wait करना Wait पड़ेगा. करना पड़ता है आउटपुट के लिए. एक फार्मर की अगर आप लाइफ सोचो, तो उसको पूरे लाइफ टाइम में शायद मतलब जितना एक्टिव एज में वो फार्मिंग करेगा, हाँ. उसको 40-50 एक्सपेरिमेंट्स का ही मौका मिलता है पूरे लाइफ में, राइट. सो और जब आप उसी ऑडियंस के साथ काम करते हो, तो आपको उस लिमिटेशन के साथ रहना पड़ता है, राइट. सो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम. So when we reached out to investors with a concept of building something like a Facebook for farmers, हाँ. तो ये काफी इंट्रीगिंग लगा. They felt कि data is the biggest missing element from business perspective, right? So farmer perspective से हम information access की बात कर रहे थे, but from business perspective data शायद नहीं है. मतलब अभी भी हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट एग्री स्टैक के ऊपर काम कर रही है, राइट. एंड वी आर येट टू सी कि मतलब व्हाट विल कम आउट. स्टैंडर्डाइजेशन इन डेटा है ही नहीं. इनफैक्ट लैंड का जो क्वांटिटी होती Exactly. है वो भी हर स्टेट टू हाँ. स्टेट अलग होती है, तो आप बोल क्या रहे हो और उनका जो लोकल डेटा कुछ और होगा, तो उसका एग्रीगेटेड आप एक तो एकर्स में टर्म्स अलग हैं, हाँ वो राइट. एक कॉमन टर्म बीघा जो सबसे ज्यादा हाँ. लोग यूज करते हैं, उसका साइज हर जगह हर अलग है. जगह अलग है. बिल्कुल अलग है. बिल्कुल सही बोल रहे हैं. तो डिजिटाइजेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. कहाँ पे मतलब इवन फ्रॉम बिजनेस यूज केसेस की आपको ट्रेड करनी है, तो कहाँ पे अभी क्या ग्रो कर रहा है, राइट. और रिस्क एक्सपोजर कैसा है, डिजीज एक्सपोजर कैसा है, कहाँ पे सप्लाई कम होने वाला है, ये इस लेवल का इंफॉर्मेशन जब तक ग्राउंड रियलिटी से नहीं मिलेगा, आप बिजनेस प्रॉब्लम्स में मतलब नया क्या करोगे, कैसे सॉल्व करोगे. सो दैट वाज अ फ्रेश पर्सपेक्टिव दैट केम फ्रॉम इन्वेस्टर्स. हम तो बस मतलब कंटेंट बना रहे थे कि वी विल गेट एज मेनी फार्मर्स टू यूज इट एज वी कैन, बट अ फ्रेश पर्सपेक्टिव केम कि इफ यू आर एबल टू गेट दैट ग्राउंड चैटर थ्रू योर प्लेटफॉर्म, जिसमें बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होती हैं कि फार्मर ऐसे सोचता है अभी मतलब ये आसपास के बेल्ट में मस्टर्ड और चना लगाते हैं लोग, राइट. सो अब एज अ कंपनी, एज अ बिजनेस आप सोचो कि यू आर सीड कंपनी, राइट. आपको पहले से डिस्ट्रीब्यूशन फिगर आउट करके रखना पड़ेगा कि कितना मटेरियल लिक्विडेट करने का है मार्केट में. फार्मर डिसाइड करता है बारिश के हिसाब से, राइट. सो इट्स वेरी लास्ट मिनट डिसीजन कि मेरे को मस्टर्ड ग्रो करना है या चना ग्रो करना है. अभी कॉटन में वी हैव सीन दिस इन अलवर, कॉटन का जो सोइंग है लास्ट ईयर से काफी कम है इस बार, क्योंकि रेन डिलेड है. और ये वेरिएबल कोई भी नहीं अकाउंट फॉर कर सकता. आप कैसे कर सकते हो? दिस इज वेरी ह्यूमन पर्सनल डिसीजन, राइट, जो छोटी-छोटी कम्युनिटीज में लेते हैं लोग, गांव में लेते हैं.
सो वो अगर, और वो चैटर कहीं भी नहीं है, नहीं है। एक्सेसिबल नहीं है वो इन्फॉर्मेशन, राइट? सो और उसका लेने का मतलब अदर प्रोसेस कुड बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव, कि आप हर जगह ग्राउंड में लोग लगा रहे हो एंड यू आर डूइंग सर्वेज मतलब राउंड द ईयर, राइट वो फीजिबल नहीं है, हु विल Right. पे फॉर इट, राइट? सो अगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से ये चैटर्स आ सकती हैं बाहर, एंड इफ वी आर एबल टू बिल्ड दैट टेक to make some sense out of that data, okay right, transform them into insights and give actionable items to the businesses. got it So that was something that clicked to some of the investors, lovely and we got our investment. Now coming to your first question, right, कि क्या पैटर्न है यूसेज में? सो हाँ, डेफिनेटली कुछ पैटर्न है विद रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ द फार्मर्स, राइट? सो ब्रॉडली मतलब 3 साइजेस में देख सकते हैं कि एक बहुत बड़े फार्मर्स हैं हैविंग लाइक हंड्रेड्स ऑफ बीघास ऑफ लैंड, डूइंग कमर्शियल खेती, राइट? उनकी पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से देख सकते हो, इंटेंट के हिसाब से देख सकते हो, प्रोग्रेसिवनेस कितना है, मतलब वी कॉल प्रोग्रेसिव फार्मर, बट प्रोग्रेसिव मीन्स व्हाट? प्रोग्रेसिव मीन्स कि जो एक्सपेरिमेंट करना चाहता है और जो भी उसके पास रिसोर्सेज हैं इन टर्म्स ऑफ लैंड, राइट, मोस्ट प्राइमरीली, सो उससे अपना आउटकम को मैक्सिमाइज करेगा, राइट? तो प्रोग्रेसिव है. So basically is open to change because there's some farmers who don't want to move out of the comfort zone. राइट. सो मतलब प्रोग्रेसिव फार्मर्स कुछ नया नया ट्राई करेंगे, नई प्रोसेस ट्राई करेंगे, नए प्रोडक्ट्स ट्राई करेंगे, नया क्रॉप ट्राई कर लेंगे, राइट? कि मतलब जितना लैंड है उसमें से इस बार 10% में एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं. सो दीज पीपल आर बेसिकली प्रोग्रेसिव, राइट? सो विद इन व्हाटएवर लिमिटेड नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स दे गेट टू डू, उसमें से कुछ ना कुछ इनोवेटिव ढूंढ लेते हैं. Okay. सो उसका लैंड साइज से वी सॉ की कोई खास रिलेशन नहीं है, राइट? जैसे मतलब आई कम फ्रॉम बिहार. बिहार में लैंड होल्डिंग काफी कम है, पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है, राइट? बट वहां पे आपको काफी प्रोग्रेसिव फार्मर्स मिलेंगे. सो ऐसा अलग अलग टाइप का पर्सोना है. जो बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव विद लार्ज लैंड होल्डिंग फार्मर है, वो हमारा यूजर नहीं है, राइट? बिकॉज फॉर देम देयर इज नो बिजनेस यूज केस. हम बात करते हैं 13 करोड़ फार्मर, तो एटलीस्ट 10 करोड़ फार्मर इस वाले सेगमेंट में आते हैं. सो दे आर आवर यूजर्स. और उनमें मतलब सीजनल ट्रेंड बहुत ज्यादा होता है ऑफ कंटेंट यूसेस, राइट? स्पेशली जैसे फार्मर की एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं एक सोइंग टाइम पे, राइट? सोइंग मोस्टली इज रिलेटेड टू रेन्स, राइट? तो जिस दिन बारिश होती है हमारे ऐप का यूसेज एकदम स्पाइक करता है. तो एक्चुअली बारिश होती है आपके लिए. एग्जैक्टली. ओके. सो जब भी बारिश होती है, मॉनसून का सीजन होता है. So this is probably the most weird trend of app usage I have heard of. और ये सारा कोई प्रेडिक्टिवली नहीं बता सकता कि ऐसा कुछ भी होगा. नहीं, बिल्कुल. मतलब क्या बात अब है, तो बारिश होती है उस दिन ऐप का यूसेज बढ़ जाता है. हाँ, अब किसी से भी ऐसे पूछ लोगे ना कि कल DAU कितना था, तो DAU सुन के लोग बोल देंगे अच्छा बारिश हुई है, कहाँ हुई है? मतलब लिटरली इट हैपेंस कि कल बारिश कहाँ हुई है, तो DAU देखो कहाँ का बढ़ा हुआ है. एग्जैक्टली. वाओ. सोइंग टाइम पे बढ़ जाता है काफी पैटर्न. फिर हर एक क्रॉप की अपनी एक साइकिल है, एंड वी हैव स्टडीड दैट. हमारे पास कम से कम मतलब ऐसा 150 क्रॉप्स का बहुत सारा डेटा है. 30-40 लाख तो क्वेरीज हैं, मतलब क्रॉप डिजीज से रिलेटेड सिर्फ, राइट? सो उसको देख के मतलब वी हैव बिल्ड सम पैटर्न कि किस क्रॉप में, किस एरिया में, किस टाइम पे ज्यादा एक्टिविटी होती है, विच इज रिलेटेड टू सोइंग एक्टिविटी, क्रॉप प्रोटेक्शन एक्टिविटी, जब पेस्ट अटैक होगा या कुछ बीच में न्यूट्रिशन डिफिशियंसी होगी, राइट? उसके बाद एंड देन थोड़ा बहुत मतलब इन सर्टेन क्रॉप्स इन सर्टेन रीजन्स अराउंड हार्वेस्टिंग, क्योंकि उसके बाद हम ज्यादा कुछ ऐप में नहीं करते हैं, राइट? सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. मतलब जैसे आपने कहा कि आप स्टार्ट ऑफ कर रहे थे कंटेंट और मे बी कम्युनिटी एंगल से, और वो बिल्ड आउट होके इट्स ऑलमोस्ट बिकम अ डेटा कंपनी. वी आर अ डेटा कंपनी नाउ. देयर यू गो. अ डेटा कंपनी एंड एन इनसाइट कंपनी ड्राइविंग बोथ एंड्स, राइट? Enabling farmers as well as enabling stakeholders who are servicing the farmers. So एक तो ये this whole, I mean, I definitely feel like data is very enabling, but it's मैं एक contrarian view इस चीज में थोड़ा सा लेके चलती हूँ कि एक पॉइंट के आगे डेटा आपको, मुझे लगता है, हेल्प नहीं कर सकता. It's in general also, like in specifics to business as well, because this is just my, like I said, contrarian view, because the external macro variables are beyond predictives, right? Analytics. आप अभी चाहे चलिए आप रेन कर लेंगे, political situation आप अपनी country में कर सकते हैं. The political situation, what is happening internationally, could impact imports, exports of goods, right? So these are things which I feel after a point, like, data is helpful, but it is not the only driver. And there's something else, right? जैसे आप दोनों ने कहा था, आपने जब दोनों ने ही अपनी कंपनी स्टार्ट की, वो आपके इनसाइट्स उस समय पे, उस टाइम पे थे, उस हिसाब से आपने बनाए.
आगे जो चीज बनती है, you just don't know, right? You see the You keep evolving, you yeah. keep evolving, you keep learning, and it kind of goes from there. I also want to talk about जैसे जब आपकी जर्नी पे आपने start किया, was there a good ecosystem of other founders or in the industry that was super helpful to you, that maybe you felt kind of changed your trajectory as well? Right. So yeah, the ecosystem was there, right? So तब तक आपकी मतलब just to name a few companies, Dehat had started, Yeah, yeah. right? AgroStar was there, Right. although I didn't get to meet the founders. Then you had Ninja Cart, right? So a lot of companies solving different types of problems across the value chain, हाँ. right? From advisory to selling the right kind of input products for better farming. Right, and then also solving some of the farm automation problems या IoT devices लेके बहुत ही micro level पे data provide करके, and then finally trade वाला business, right? So across all of these different stages of the value chain, you see today a lot of good companies solving good problems. So उससे एक थोड़ा confidence तो obviously बढ़ता है. 2019 में when we had started और हम किसी कंपनी को जाके बोलते थे कि आप digitally कुछ कर सकते हो हमारे साथ या कुछ collaboration कर सकते हैं या फिर we are just building it. So they totally used to discard the idea of doing anything digital in agriculture कि digital क्या होगा, कैसे ही होगा, right? सबसे पहला जो एक ब्लॉकर था, मेंटल ब्लॉकर, कि फार्मर अभी ऑनलाइन नहीं है, राइट? स्मार्टफोन लोग यूज नहीं करते हैं, लोग लिटरेट नहीं है, टू सर्टेन एक्सटेंट वो है वो सब, बट स्टिल यू ओनली हैव टू फाइंड योर ओन ऑडियंस एंड समवेयर इट हैज टू स्टार्ट. I also feel visual content in general has changed the literacy. जो literacy का issue था, right? वो so many people watch and they replicate, right? Watching and replication is a very visual format. मतलब लैंग्वेज तो आपको किसी ना किसी तरीके से मतलब वो हो सकता है पढ़ने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत आएगी, बट देन आप वीडियोस करते हो, राइट? एंड दैट्स हाउ वी ट्रांजिशन फ्रॉम, मतलब इनिशियली वी वर डूइंग ओनली टेक्सचुअल कंटेंट एंड देन वी ट्रांजिशन टू मिक्स ऑफ वीडियो एंड टेक्सचुअल कंटेंट एंड देन लार्जली मतलब नाउ 99% वीडियो कंटेंट. ओके. Right? So we have our own content creators, okay, who create content. मतलब सिंपल है, कोई भी content creator बन सकता है, थोड़ा एग्रीकल्चर नॉलेज होना चाहिए, अच्छा, फार्मर्स के बीच में रहना चाहिए, और मोबाइल फोन यूज करके वीडियोस जो थोड़ा क्रिएट कर सकता है. तो आपके ऐप में से जैसे कृषिफाई कम्युनिटीज में से हैव देयर बीन एनी लाइक स्टार फोक्स दैट यू देन टेकन ऑन टू मेक कंटेंट फॉर यू, मतलब ऐसे कोई हुए कि जो उसी कम्युनिटी में से lot of them मतलब हमने जब स्टार्ट किया था तो when we enabled users to create content, पहले काफी ऐसा क्लोज था, क्यूरेटेड था. when we opened it, lot of people started creating content, और इनिशियली हमने थोड़ा उसको मॉडरेशन रखा था उसमें कि पहले हम वेरीफाई करेंगे, बिकॉज एग्रीकल्चर इज सेंसिटिव. सो कोई भी अगर उठ के अगर कुछ खराब नॉलेज दे दिया या किसी ने अगर कुछ फॉलो कर लिया और अगर वो उल्टा पड़ गया, राइट, सो यू हैव टू फेस इट देन. सो वी वर वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट इट. तो हम हर एक कंटेंट को, अभी भी मॉडरेशन प्रोसेस है, बट इनिशियली इट वाज लाइक टोटली क्लोज्ड. पहले कंटेंट आके मॉडरेशन होगा, उसके बाद ही पब्लिश होगा. मेरा कंटेंट पब्लिश नहीं हो रहा है, और दे यूज्ड टू ट्रैक कि इतना ज्यादा टाइम क्यों लग जाता है, अच्छा, राइट? सो वो इस तरह ही कंप्लेंट्स आने लग गई. सो एंड दैट वाज लाइक अ हैप्पी क्योस, अ गुड थिंग फॉर अस, कि पीपल आर एक्चुअली विलिंग टू शेयर देयर नॉलेज, राइट? सो एज ही सेड कि नॉलेज, ऐसा नहीं नॉलेज एग्जिस्ट नहीं करता था, नॉलेज है भी, और हम ये बोलते भी थे कि मतलब हम कुछ नया नहीं सिखाने जा रहे हैं, राइट? हमसे बेटर फार्मिंग आती हो उनको. इट्स जस्ट दैट कि जिनको आती है उनके नॉलेज को हम कैसे डेमोक्रेटाइज कर सकते हैं, एंड दैट्स वेयर प्लेटफॉर्म कम्स, राइट? सो अगर वो फार्मर आके वो क्या कर रहा है, कैसे उसने बेटर फार्मिंग करी है, इफ ही इज विलिंग टू एटलीस्ट शेयर दैट नॉलेज विद अदर पीपल, यू नो, व्हाई नॉट, इट सर्व्स द पर्पस. जैसे आपने बताया, ये मेरे को लगता है कि जनरली मैंने पहले भी कहा, और मुझे ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली फील होती है कि एक्चुअली पीपल आर विलिंग टू जनरली हेल्प पीपल आउट देयर. लाइक जैसे आपने कहा, ये कोई कंटेंट बना के हेल्प ही करना चाह रहे हैं उनको, while the views and all are great, actually people want to help, right? So just kind of takes me back to, I think in general people are genuinely nicer. I always like to tell that, assume the best, because really people will surprise you कि लोग कितने out of the way जाके करते हैं. I mean, and again a shout out to the Head Start Network Foundation, because उन्होंने मुझे, I met Vinay through them. I think if you're in India and you're looking at anything in the startup ecosystem,
they are one of the best people, most genuine folks, right? And Yeah. also connected me to you, Yeah. Rajesh. And they, you know, when someone does something for you without an agenda, आप भी उनके लिए करने को तैयार होते हो, फिर वो बिल्कुल। सवाल वैसे आता भी नहीं है. If you could go back to the Vinay in 2019, what would be that one thing you would tell him? What would be one thing that I would tell him? I think he was doing all right. He was doing all right. Oh, that's a good one. I like it. Yeah, and he was doing all right, and he's done pretty all right, I must say. You know, So I that's- just tell him, don't worry, it will all work out in the Yeah. future. So All is just well. be at it. Just be at it. yeah. Frankly, I don't feel any lack of information or knowledge. 2019 was not my starting point. I had been You had building been with the field. Yeah. 8 years before that. Yeah. So this was second time around for us, right? Yeah. And second, I think I don't believe in regrets, very frankly Hmm. speaking. So मुझे लगता है जो जैसे होना होता है वैसे ही हो रहा होता है. Like I said, I try and take, instead of trying to look too far in the future and like plan each day. I do have a vision and I do have a goal to Yeah. reach, but मैं ऐसे step by step plan नहीं करता थोड़ा, and this may be a little counterintuitive advice, but I try and take each day at a time. Nice. तो I wouldn't want to change that, कि जाके पहले से बता दूं कुछ. तो मैं ये आप बोलूंगा कि बोलोगे बस chill, सही है, chill. सब सही है. हाँ, It's okay. it will all work out. Yeah. Like you believe, keep believing that. Nice. हाँ, बीच में हारना मत. हाँ, ये वाला part is, when the things get tough, तब लिखता है. I think at least even with me, right, there are days when you're like, I don't know what I'm doing, right, and that's the day you want to give up, and that's the day you sort of have to pick yourself Yeah, up. the now that I'm most. thinking hard, I'm thinking that probably like what was that I felt kind of disheartened about in the last 5 years. Probably just before our Series A happened, हाँ. we went to all investors and like everybody kind of rejected, saying great idea but nobody will pay for this. People will not pay. कौन हरियाणवी फिल्में देखने के लिए? We had not started monetizing Right. by then. This is December 2020. Okay. Basically. So there was one really bad and like low phase of my life in early 2019 when we lost Witty Feed and like identity crisis, trying to figure out what to do next. Yeah. But the real bottom of the U curve was December 2020. Okay. Because that is when it all came back hitting कि अरे सही बोल रहे थे लोग. मतलब एक बंद हो गई थी, वो तुक्का ही था, तो दूसरे वाली भी बंद हो रही है क्योंकि तुम मतलब we were about to run out of money, nobody was giving us money. We like तब वो real depression hit हुआ कि यार मतलब तो दूसरी भी बंद हो जाएगी तुम्हारी, तुम्हें आता ही नहीं है, किस लायक हो. I used to just roam around full day and like think about कि मैं नौकरी क्या करूँगा, which job am I eligible for. एक तो फाउंडर की लाइफ में ये और बड़ी प्रॉब्लम होती है, बेचारे जर्नलिस्ट होते हैं. यार actually like what job would you apply for, yeah, right? That's true. So it was a very like It's a it tough was the bottom of U curve for me, and I it took lot of it took a lot to come out of that, I think. So if I were to go back in 2019, I'll say don't worry about 2020. Yeah. It will work out. Nice. I just probably say that ki don't take any of these investors' advice seriously. Chill, don't worry. Believe in what you believe in and just keep doing what you do. That's good. And Rajesh, what about you? From building a startup perspective, मतलब मुझे जो उस टाइम पे चीजें लगती थी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे फंड रेजिंग, मुझे लगता था कि सबसे डिफिकल्ट पार्ट फंड रेजिंग है, राइट? अगर वो हो जाता है तो मतलब फिर तो बिल्ड कर ही लोगे. सो बट वो ट्रू नहीं है. सो लॉट ऑफ सच थिंग्स कि मतलब इन्वेस्टिंग इन पीपल, राइट? People choices is the most important thing probably, whatever I have learned so far. So ये एडवाइस होती है. एंड देन अबाउट द सेक्टर की भाई जो चुना है, so मतलब you will have to give it time, right? यहाँ पे ऐसा कुछ मतलब ओवरनाइट वंडर नहीं होने वाला है. It's going to be a long journey. तो लगे रहो. और काफी कर्व्स आएंगी, काफी चेंजेस आएंगे, मतलब बहुत चीजें बदलेंगी, राइट? So keep building, keep iterating, but just believe and move forward. Especially हम जितने भी कैटेगरी क्रिएटर कंपनी बिल्डर्स हैं ना, हम सबके लाइफ में तो परसिवरेंस के सिवाय कुछ और है ही नहीं. There's only one thing that works for us. Right. Everything else is working against us. Ecosystem, investors, everybody is telling us कि ये क्या बना रहे हो, ये क्या बेवकूफ़ी है. हर कोई हमें यही समझा रहा होता है basically.
and then you find a believer, and then you build on the top of that. आप खड़े रहोगे तो जीत जाओगे. That's a very good one to remember, and it's also not the easiest to put in practice. Every day, Absolutely showing up every day. किसी और के लिए नहीं, अपने लिए भी showing up every day is not the easiest at all. Not at all. Not at all. But great, and thank you so much to both of you for your time, and also for the fact कि आप build कर रहे हैं what I still call Bharat for people in there. For people, helping them identify, whether it's as a farmer, helping them get more comfortable with that identity, helping them celebrate. I really love the way you said celebrate your identity. I think that sounds the most beautiful to me. जैसे आप हैं वैसे ही आप रहें. And yeah, thank you so much for being on the Bharat Conversation today. Thank you so much. Thank you. Namaste. Hi everyone, thank you so much for joining us thus far on the Bharat Conversation. I hope आप लोगों को key takeaways मिले, कुछ अच्छी conversation सुनने को मिली, and some great guests that you met. Look forward to seeing you on the other episodes. Thanks.